Okay, students, good afternoon once again. Last time we made Yeah, discussion can on dipole antenna and rather folded dipole antennas, right? And we have made comparison also for loop antenna and ferrite rod antennas. Fine. We discussed the advantage of folded dipole because of its high input impedance or resistance, higher bandwidth, ease of construction, and cost efficient impedance matching. These are some advantages. So Yagi antenna, it was very popular and common antenna uh, around 1 decade back, maybe more than that. It was using, but because of the dish antennas and cable transmission, so they all these antennas are now disappeared. I mean, it has been replaced by dish because dish is having a small size and moreover it is operating in the KU band, so you are getting number of channels, fine, and it is being operated at higher. Those are all are called high frequency antennas. And in 6M or in 5M, maybe in 6M, whenever I will teach you microwave and radar engineering, there we will discuss some horn antennas, dish antennas, uh, parabolic antennas, cut antennas. So what are all those? We will discuss at that time. Fine. Now again today this is a last topic of this particular chapter. Fine. So okay, Yagyu antenna. Yesterday Nancy she was asking, so what is Yagyu antenna? I already told you that this is a rather group of dipole antenna. Okay, group ਹੈ dipole antenna ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ driven element ਬੋਲਦੇ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੌਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਡਾਇਪੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਹਾਫ ਵੇਵ ਡਾਇਪੋਲ ਹੈ, ਹਾਫ ਵੇਵ ਲੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਰੇਂਜ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨਾ ਉੱਥੋਂ ਵੇਵ ਲੈਂਥ ਕੱਢ ਲਓ ਔਰ ਉਸ ਵੇਵ ਲੈਂਥ ਦਾ ਹਾਫ ਲੈ ਲਓ, ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਲੈਂਥ ਆ ਉਨਾ ਹੀ ਆਇਸ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਲੈਂਥ ਆ ਜਿਹੜਾ ਡਰਿਵਨ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਾਈਪੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੋ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ એનર્ਜਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਆ ਸੋਰਸ ਤੋਂ ਫੀਡਰ ਵਾਇਰ ਦੇ ਨਾਲ એનર્ਜਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੀ ਮਕੈਨੀਕਲ ਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੋਡ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਆ। ਫਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਨੂੰ ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਥ ਆ ਉਹ 0.55 ਇਨਟੂ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਵੇਵ ਲੈਂਥ। ਤੋ ਇਹਦੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਹਰ ਪਹਿਲੇ ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਾਈਪੋਲ ਤੱਕ ਤੇ ਡਾਈਪੋਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਸਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੱਕ ਤੇ ਇਨ ਦੀ ਕਮਿੰਗ ਆਲਸੋ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਵੇਵਲੈਂਥ ਆ ਉਹਦਾ 1/10 ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਡਰਿਵਨ ਐਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਬੋਲਦੇ, ਰਾਈਟ। ਔਰ ਮਤਲਬ 0.5 ਲੈਮਡਾ ਇੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਦਾ 0.05 ਲੈਮਡਾ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵਿਟੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੋ ਇਹਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਿਗਨਲ ਆਉਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਿਗਨਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪਰਪਸ ਹੈ ਡਾਈਪੋਲ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵਸ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਯਾਗੀ ਉਦਾ ਐਂਟੀਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਯਾਗੀ ਐਂਟੀਨਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਯਾਗੀ ਉਦਾ ਐਂਟੀਨਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਟਾਈਮਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਏ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਡਾਈਪੋਲ ਐਂਟੀਨਾ। ਗਰੁੱਪ ਕਾਹਦਾ ਡਾਈਪੋਲ ਐਂਟੀਨਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਿਵਨ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਵਨ ਔਰ ਮੋਰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਐਲੀਮੈਂਟ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਨੂੰ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲੀ ਕਨੈਕਟਡ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੇਵ ਲੈਂਥ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਵੀ ਆ ਪਲੱਸ ਇਹਦੀ ਲੈਂਥ ਵੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿਗਨਲ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅੱਛੀ ਮਿਲੇ। ਐਂਡ ਆਲ ਥੀਸ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆਰ ਅਰੇਂਜਡ ਕੋਲੀਨੀਅਰਲੀ, ਸਾਰੇ ਕੋਲੀਨੀਅਰਲੀ ਅਰੇਂਜ ਹੋਏ ਹੋ ਕਲੋਜ਼ ਟੁਗੈਦਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖੋ। ਫਸਟ ਜਿਹੜਾ ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਹੈ ਇਹ ਫੋਲਡ ਡਾਇਪੋਲ ਹੈ, ਆ ਫੀਡਰ ਵਾਇਰ ਆ, ਅੱਗੇ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਐਂਡ ਤੇ ਸਾਈਜ਼ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਇਹ 5 ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਿਖਾਇਆ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ 6 ਐਲੀਮੈਂਟ 30 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਰਾਈਟ। So Yagi antenna can be used as transmitting or receiving antenna. When used as transmitting antenna, source is connected to the dipole card. अच्छा, ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਟਰਾਂਸਮਿਟਿੰਗ ਐਂਟੀਨਾ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੋਰਸ ਜਿਸ ਆਰਐਫ ਸੋਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਾਈਪੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਡੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਪੇਸ ਵੱਲ ਕਪਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ।
ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਐਜ਼ ए ਰਿਸੀविंग ਐਂਟੀਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੋਰਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸੀਵਰ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡਾਇਪੋਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡ੍ਰਿਵਨ ਐਲੀਮੈਂਟ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰਾਸਟਿਕ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲੀ ਕਨੈਕਟਡ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਪੈਟਰਨ ਕੱਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਆ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਪੈਟਰਨ ਹੈ, ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਲ ਐਂਟੀਨਾ ਦਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬਣਦਾ ਪੈਟਰਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਫਿਗਰ ਆਫ 8 ਆ, ਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਲਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਐਡਜੇਸੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰੀਏ ਤੇ ਐਂਡ ਇਟਸ ਪੋਸੀਬਲ ਟੂ ਰਿਡਿਊਸ ਦੀ ਬੈਕ ਲੋਬ ਆਫ ਦ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਪੈਟਰਨ। ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਫਰੰਟ ਲੋਬ ਜਿਹੜਾ ਮੇਜਰ ਲੋਬ ਆ, ਮੇਨ ਲੋਬ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਧਰ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰੈਂਥ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਪੈਟਰਨ ਦੀ ਫੀਲਡ ਸਟਰੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਇੱਧਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ, ਤਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਲ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਬੈਕ ਲੋਬ ਜਾਂ ਮਾਈਨਰ ਲੋਬਸ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੈਗੀ ਇਹ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵਸ ਦੀ ਫੀਲਡ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਪਰਪਸ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵਿਟੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਗੇਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫੀਲਡ ਸਟਰੈਂਥ ਵੀ ਇੱਧਰ ਹੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋਵੇ। तो आ माइनर ते आ जी बैक लोब है ये घट होनी चाहिए। ठीक है ना। तो ये किदा घट घटा सकते हैं, आ जो डायरैक्टर्स है इन्होंने विचकार डिस्टेंस को एडजस्ट करके, समझ आ गए। इस करके असी फ्रंट टू बैक रेशो जी आगी वो एंटीना दी वो असी इंप्रूव कर सकते हैं। क्लीयर। फिर यदा रेडिएशन पैटर्न होर भी वधिया हो जाएगा। जनरली कहता वन रिफ्लैक्टर एंड मैनी डायरैक्टर्स आर यूज्ड, लेंथ ऑफ द डायरैक्टर्स विल रिड्यूस प्रोग्रेसिवली। मैं पहले दसिया 0.05 लिमिटा के नाल घटती जानी अगे अगे। एडवांटेज की है, डायरैक्शनल एंटीना है, मॉडरेट गेन है अबाउट 7 dB। मॉडरेट मीनस ना ज़्यादा तो ना हाई, विचकार जहा। ठीक है। और कंपैक्ट साइज, लार्ज बैंडविड्थ कैन बी यूज्ड एट हाई फ्रीक्वेंसी, एडजस्टेबल फ्रंट टू बैक रेशो। डिसएडवांटेज की है, गेन कहता इन्ना भी हाई नहीं है, और लार्ज नंबर ऑफ एलीमेंट्स इतने चाहिए, जिदा ये 5 दिखा लिया, 6 भी है, 13 एलीमेंट भी होता। ठीक नहीं। तो एप्लीकेशन हाई फ्रीक्वेंसी एंटीना इनू एज ए असी यूज़ करते हैं, और VHF तो टी वी रिसीविंग एंटीना वास्ते भी हर फ्रीक्वेंसी यूज़ कर सकते हैं। जे बहुत सारे एंटीना इकट्ठे कर दिए, स्टैक बना दिए, तो उत्तों सानू सुपर गेन एंटीना, यानी गेन भी ज़्यादा मिल सकता। असी उस एंटीना का नाम बोल लिया सुपर गेन एंटीना। ठीक। सॉरी, इक्वलेंट सर्किट यागी उदा एंटीना का, इनू ऑप्टिकल इक्वलेंट कहते हैं। जो देखो जो इतने रिफ्लैक्टर से वो एज मिरर आ, जो डायपोल वो एज सोर्स है, आ एज लेंस आ। तो डायरैक्ट इधरों जिन्नियां भी वेव्स आईयां सोर्स तो जिहड़ियां जनरेट होनियां इत्ते पैना ये इनर एज ते जिहड़ी कर्वड पाथ है उस तो सीधियां पैरल निकलणगियां अगे, उन्होंने बोलते कॉलीमेटेड रेज। तो जो इस लेंस के उपर आ बोलते हैं कन्वैक्स लेंस, इनू बोलते कनकेव लेंस। जो इधरों पैरल रेज ये उपर पईयां उन्हें अगे जाके कन्वर्ज हो जाना, फोकस हो जाना। समझ आ गई। मतलब एक पॉइंट से स्पॉटिंग हो जानी उन्होंने। तो ये वह ऑप्टिकल इक्वलेंट दिखाया यागी का एंटीना का, तो किस तरीके ये काम करता। तो इतने रिफ्लैक्टर एज ए मिरर तो डायपोल एज ए सोर्स तो डायरैक्टर एज लेंस एक्ट करता। लेंस केड़ा कन्वैक्स। ठीक है। तो ये कनकेव। ठीक है। अगे आप डायपोल एरेज की है, कल भी मैं गल कर रहा डायपोल एरेज की। एरे वर्ड आता ही उदों जो असी ज़्यादा रेडिएटर्स या एलीमेंट्स में जोड़ते हैं। ठीक है। एन एरे ऑफ एंटीना इज डिफाइंड एज दी रेडिएशन सिस्टम हैगा तो सिस्टम ही हैगा तो रेडिएशन सिस्टम है। जिदा कंप्यूटर एक सिस्टम है, कंप्यूटर का मॉनीटर है, कीबोर्ड है, माउस है, फिर CPU आ, उस तो बाद नाल एसोसीएटेड सर्किटरी आ। ये जिन्ने जिन्ने जो अलग अलग पार्ट है सब सिस्टम बोलते, जो पूरा बन गया पूरा कंप्लीट सिस्टम बन गया। ठीक है। TV भी एक सिस्टम है। इदा ही जो जिदा ग्रुप ऑफ रेडिएटर्स या एलीमेंट्स जुड़ जाना है ना, तो वो एक रेडिएशन सिस्टम बन जाता जिहदे कोल ग्रुप ऑफ रेडिएटर्स या एलीमेंट्स हो जाए। और उत्थे समझो भी नंबर ऑफ एंटीनास का एरे बना के असं उन्होंने जोड़ दिता। तो बेसिक एंटीना यूज इन सच एरेज इज कॉल्ड डायपोल एंटीना। इन्हां एरेज दे विच जिहड़ा बेसिक एंटीना आ वो डायपोल एंटीना ही यूज करते हैं। इस करके असीं इहनूं majority ऑफ टाइम डायपोल एरेज भी कहने हैं। ये दो तरह के ब्रॉड साइड एरे ते एंड फायर एरे। ठीक है। ब्रॉड साइड एरे दे विच की है देखो, दिस इज बेसिकली द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ एरे विच कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ डायपोल्स। जिदा 1 2 3 4 ये डायपोल्स ने, ये तो वध भी हो सकते हैं। हुण तुहाडी कन्वीनियंस लई, तुहाडी सिंपलिसिटी लई डायग्राम छोटी करके दिखा लिया।
सो दे आर ऑफ सेम साइज है, स्पेस्ड इक्वली दोनों, हर एक दे विच गैप भी इक्को जिहा और स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग ही है। देखो आ जी लाइन है ये अलॉन्ग ही ये सिचुएटेड ने, प्लेस्ड ने। सो द डायपोल्स आर कॉल्ड एज कोलिनियर डायपोल्स, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग ने, इस करके असं कोलिनियर डायपोल्स भी कहते हैं। सो ऑल डायपोल्स इन द एरे आर फेड इन द सेम फेस। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। सारे डायपोल्स ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ D1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ D4 ਤੱਕ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੇਮ ਫੇਸ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੋਰਸ ਤੋਂ ਸੇਮ ਫੇਸ ਵਿੱਚ ਫੀਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਨਰਜਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਬ੍ਰੌਡਸਾਈਡ ਐਰੇ ਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਆ ਤੇ ਇਹ ਇਹਦਾ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਪੈਟਰਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇਹਦਾ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਪੈਟਰਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਇੱਥੇ D1 ਤੇ D2 ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਾਫ ਵੇਵ λ/2 ਡਾਇਪੋਲ ਐਂਟੀਨਾਸ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਰੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਾਇਪੋਲ ਐਂਟੀਨਾਸ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਹੋਵੈਵਰ ਟਿਪੀਕਲ ਐਂਟੀਨਾ ਲੈਂਥ ਇਨ ਬ੍ਰੌਡਸਾਈਡ ਐਰੇ ਆਰ ਫਰੋਮ 2 to 10 ਵੇਵਲੈਂਥ, 2 ਤੋਂ 10 ਵੇਵਲੈਂਥ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸਪੇਸਿੰਗ ਬਿਟਵੀਨ ਐਡਜੈਸੈਂਟ ਡਾਇਪੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜਾਂ ਤੇ ਹਾਫ ਵੇਵਲੈਂਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਲੈਮਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਂਟੀਨਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਐਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਅੱਜ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ 4 ਦਿਖਾ ਲਏ, ਉਹ ਕੁਛ ਡਜ਼ਨਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਫਿਊ ਡਜ਼ਨਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਂਟੀਨਾ ਜਦੋਂ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 2-4 ਨਹੀਂ, ਡਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਪੈਟਰਨ ਦੀ ਦਿਖਾ ਲਈਏ ਬ੍ਰੌਡਸਾਈਡ ਐਰੇ ਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ? ਬ੍ਰੌਡਸਾਈਡ ਐਰੇ ਇਜ਼ ਹਾਈਲੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਲ ਐਟ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲਸ ਟੂ ਦੀ ਪਲੇਨ ਆਫ ਦੀ ਐਰੇ। ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਟੂ ਦੀ ਤੇ ਇਨ ਦੀ, ਕੱਲ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਬ੍ਰੌਡਸਾਈਡ ਐਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਪੈਟਰਨ ਆ ਉਹ ਹਾਈਲੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਸ ਤੇ? ਐਟ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲਸ, ਕਾਤੇ? ਟੂ ਦੀ ਪਲੇਨ ਆਫ ਦੀ ਐਰੇ। ਐਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਨ ਬਣਦਾ ਉਹਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਯਾਨੀ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਪੈਟਰਨ ਬਣਨਾ ਉਹ ਹਾਈਲੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਟੂ ਦੀ ਪਲੇਨ ਆਫ ਦੀ ਐਰੇ ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਤੇ ਤਾਂ ਹਾਈਲੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆ, ਬਟ ਇਨ ਦੀ ਪਲੇਨ ਆ ਦੇਖ ਨਾ ਇੱਥੇ ਟੂ ਦੀ ਇਨ ਦੀ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਹਾਈਲੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲਿਟਲ એનર્ਜੀ ਉਧਰ ਰੇਡੀਏਟ ਹੋਈ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ? समझ आ गई? पिछे दिखाना, फिर यस दिखाना सर। डायग्राम। आ देखो जिन्ना एज डायरेक्शन च एज डायरेक्शन च रेडिएशन ज़्यादा, ठीक है, इधर घट है, ठीक है, रेडिएशन घट हुई है। पता लग गया? पता लग गया। सो एन एरे विच इज डायरेक्शनल एट राइट एंगल्स टू दी, देखो फिर वर्ड बोलता है एन एरे विच इज डायरेक्शनल एट राइट एंगल्स टू द प्लेन ऑफ द एरे इज सेड टू हैव द ब्रॉड साइड एक्शन। आ पॉइंट नोट करना, एन एरे विच इज डायरेक्शनल एट राइट एंगल्स, ठीक है, टू द प्लेन ऑफ द एरे। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਬ੍ਰੌਡ ਸਾਈਡ ਐਕਸ਼ਨ। A highly directional radiation pattern is obtained as a result of reinforcement of individual patterns, and a weak radiation in the plane of the array is due to the cancellation of the individual pattern। देखो जे तो रेडिएशन पैटर्न का माइनर ਜਾਂ ਵੀਕ ਲੋਬ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਪੈਟਰਨ ਦੀ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੇਜਰ ਹੋ ਗਿਆ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਹਾਈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਪੈਟਰਨ ਦੀ ਰੀਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ? यानी सारे ऐड होगा। गल क्लियर हो गई? मैं रिपीट कराता। एंड फायर एरे किया, एंड फायर एरे किया, एंड फायर किया मतलब एक लाइन के एक एंड तो ही आप फीड करना, ठीक है। ये भी डायल लग गया। हम इतने वेवलेंथ देखो कि गैप, दे आर स्पेस्ड अपार्ट λ/4, show the arrangement of dipole antennas in the end fire configuration। Physical arrangement of the dipoles in the end fire array is almost same as that of the, उदा ही लगती है ब्रॉडसाइड एरे वांग, पर इत्थे की कहता मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इन ईच एलीमेंट इज सेम बट फेज इज नॉट सेम। आ फर्क है, समझ आ गई? मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इन ईच एलीमेंट इज सेम, करंट का मैग्नीट्यूड हर एक दे विच सेम है। मान लो जिदा ये 5 एम्पीयर करंट फ्लो कर रहा, ये भी 5, ये भी 5, या 1 एम्पीयर, ये भी 1 एम्पीयर, या 1 जिन्ना भी आ, सारे एलीमेंट्स के जिन्ना ईच एलीमेंट में जो करंट का मैग्नीट्यूड है वह सेम है, पर सारा का फेज सेम नहीं है। सो देर इज ए फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट्स फ्लोइंग इन वेरियस डायपोल्स। सो अलग अलग डायपोल के करंट फ्लो कर रहा, क्योंकि उन्होंने फेस सेम नहीं है, इस करके फेज डिफरेंस पैदा हो जाना। सो करंट प्रोग्रेसिवली लैग्स बिहाइंड एज वी मूव फ्रॉम लैफ्ट टू राइट।
जिदा असीं लैफ्ट टू राइट मूव करते हैं करंट जिहड़ा वो लैग करता प्रोग्रेसिवली लैग बिहाइंड सो दी अमाउंट ऑफ फेस लैग इज इक्वल टू हॉर्ट्स तो जिहड़ा फेस लैग जिहड़ा फेस लैग का अमाउंट है या जिहड़ा अमाउंट ऑफ फेस लैग आ वो काहदे बराबर है इज इक्वल इन हर्ट्स टू देयर स्पेसिंग इन वेवलेंथ्स पता लग गया असल च है तो एंगल ही होंदा ना जिदा अमेगा कि बराबर आप कहते होंगे सी 2πf तो एफ की हो गई 1/t है ना 1/t अमेगा टी उधरों 2 सो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी कहते हैं जितना तो इतनी वही वर्ड है द अमाउंट ऑफ फेस लैग इज इक्वल इन हर्ट्स टू देयर स्पेसिंग एंड वेवलेंथ्स ठीक है द अमाउंट ऑफ फेस लैग इज इक्वल इन हर्ट्स टू देयर स्पेसिंग एंड वेवलेंथ्स अगे की कहता स्पेसिंग बिटवीन एडजेसेंट डायपोल वो जी इधर λ/4 है या 3 λ/4 होगा ਇਹਦਾ मतलब मल्टीपल ऑफ λ/4 हो गई ठीक है ਇਹਦਾ रेडिएशन पैटर्न देखते किदां दा एंड फायर एरे दा इट्स वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम द ब्रॉडसाइड एरे क्यों किदां रेडिएशन पैटर्न इज इन द प्लेन ऑफ द एरे इत्थे इन दी प्लेन आ नॉट टू दी एंड नॉट एट राइट एंगल पता लग गया ਜਾਂ टू दी प्लेन ऑफ द एरे मतलब इतने इन दी प्लेन ऑफ एरे ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਪੈਟਰਨ ਬਣਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਉਲਟਾ ਹੈ ਬ੍ਰੌਡ ਸਾਈਡ ਨਾਲ ਉੱਥੇ 2 ਦੀ ਸੀਗਾ ਇਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਇਨ ਦੀ ਆ ਤੇ 2 ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੋ ਮੋਰ ਓਵਰ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਪੈਟਰਨ ਇਜ਼ ਯੂਨੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਲ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਬਾਈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਬਾਈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਵੀ ਸੀ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਲੋ ਬਣਦਾ ਸੀ ਲੈਫਟ ਤੇ ਵੀ ਲੋ ਬਣਦਾ ਸੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਦੋਨੋਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਲੋ ਬਣਦੇ ਸੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਕ ਲੋ ਥੋੜਾ ਵੀਕ ਸੀਗਾ पर लोग दोनों दो बनते सी दूजिया साइडों के माइनर बनते सी वो घट रेडिएशन असी उन्होंने काउंट नहीं करते अच्छा अगे की आ बोथ दी एंड फायर एंड ब्रॉड साइड एरेज आर कॉल्ड सॉरी बोथ दी एंड फायर एंड ब्रॉड साइड एरेज आर कॉल्ड एज लीनियर एरेज एंड बोथ आर रेजोनेंट बिकॉज दे कंटेन दी रेजोनेंट एलिमेंट्स एंटीना जो मैं पहला भी दसिया क्योंकि एंटीनास जो उन्हें पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी लैक उसके रेजोनेंट एलीमेंट्स होंगे रेजोनेंट मतलब एल सी सर्किट वो होना ही होना ठीक नहीं सो बोथ दी एरेज हैव ए नैरो बैंडविड्थ सो दे आर सूटेबल फॉर सिंगल फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिशन नैरो बैंडविड्थ का मतलब बैंडविड्थ उन्होंने घट है तो यह मतलब घट फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिशन वास्ते सूटेबल है सो दीज एरेज आर नॉट यूजफुल फॉर रिसेप्शन बिकॉज रिसेप्शन द रिसीवर should have an ability to receive over a wide frequency range देखो क्योंकि नैरो बैंडविड्थ है इस करके एक अद्धा सिग्नल रिसीव करेगा तो वाइड बैंड फ्रीक्वेंसी रेंज नहीं है इस करके रिसीवर दे विच इहदा यूजफुल घट ही है घट है ठीक है अगे पढ़ते असीं रोम्बिक एंटीना सिलेबस उन्ना की है तुहाडा जिहड़ा पिछे सीगा आ तुहाडी सिर्फ जानकारी वास्ते दस्सण लगा रोम्बिक एंटीना है किदां दा ये भी एक एरे है पर काहदा नॉन रेजोनेंट एंटीनास का नॉन रेजोनेंट एंटीनास किहड़े हुंदे आ जिन्हां दी डायरैक्शन जिहड़े डायरैक्टिव होण जिन्हां दी डायरैक्टिविटी जां जिहड़ा जिन्हां दी एक पर्टिकुलर डायरैक्शन दे विच मेजर लोब बने जिवें ये आ ठीक है जिन्ने डायपोल उहनूं नॉन रेजोनेंट बोलदे आ ठीक है एंड इट इज सूटेबल टू वर्क एज ए ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग एंटीना इन द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ 30 तो लैके 30 मेगाहर्ट्ज हाँ तो 30 तो 30 मेगाहर्ट्ज ये HF की रेंज है हाई फ्रीक्वेंसी की रेंज है क्योंकि जे तुसी बैंड च देखोगे तो जी हाई फ्रीक्वेंसी की रेंज है वो 3 तो लैके 30 मेगाहर्ट्ज है तो इस ही रेंज के इस एंटीना असी एज ट्रांसमिटर भी तो एज रिसीविंग एंटीना भी यूज कर सकते ठीक है यदी आ कंस्ट्रक्शन दिखा ली है ठीक है तो रेडिएशन पैटर्न शोन इदा का रेडिएशन पैटर्न दिखा ठीक है आ सारे इंडिविजुअल पैटर्न भी दिखाए जिमें एदा एस एंटीना हैगा तो एरे ही है ना पर नॉन रेजोनेंट एंटीना का नॉन रेजोनेंट एंटीना मतलब इको डायरैक्शन के जी मैक्सीमम स्ट्रैंथ है फील्ड स्ट्रैंथ है जी इलैक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ठीक है ना इन दी प्लेन ऑफ दी एंटीना ठीक है ओके चलो सो दिस एंटीना कंसिस्ट ऑफ नॉन रेजोनेंट एंटीना arranged in the special way. It looks like a planar rhombus
प्लैनर रोम्बस कह लो, रोम्बस की तरह नहीं बनया, देखो जिदा रोम्बस नहीं होंगी चतुर्भुज विद ईच साइड एक्टिंग एज ए रेडिएटर, हर एक साइड ये रेडिएटर है यानी एंटीना ड्रिवन एलीमेंट है। सो लैंथ ऑफ इक्वल लैंथ रेडिएटर्स जाने आ जिन्हों दी आ रेडिएटर जां आ रेडिएटर उन्हें इक्वल लैंथ रेडिएटर कहता है सारे नॉन रेजोनेंट एंटीना का। वो वेरी करती है कितों लैके जिदा 2 तो लैके 8 लैम्डा तक, एंड द रेडिएशन एंगल फाई हैज़ ए वैल्यू 45 डिग्री टू 75 डिग्री, क्योंकि आप पर्टिकुलर एंगल से है ना 40 डिग्री तो लैके 75 डिग्री एंगल से यह वेरी करता है रेडिएशन एंगल भी इस एंगल से रेडिएट करना, and value of this particular angle is dependent on the length of the four legs of the rhombus। अच्छा ये length कितनी है, जे घट छोटी आ वड्डी आ, ठीक है, तो ਉਹਦਾ फिर ਉਹਦੇ ਨਾਲ एंगल बाकी साइडां ਨਾਲ एंगल कितना बनता, ठीक है नहीं, वो फाई उत्ते डिपेंड करती है लेंथ या चारों लेग्स दी रोम्बस दी चारों लेग्स दी लेंथ ते डिपेंड करती है। सो फोर legs of rhombus act as non-resonant antennas, roaming antennas terminated in a रजिस्टर। आ देखो इनू आप इनू टर्मिनेट कच किया इस रजिस्टर के, ठीक है, ये की करता तकरीबन 1/3 जी सप्लाइड पावर है उन्होंने अबजॉर्व कर लेना अपने, जी इधरों पावर मिलती है ये 1/3 पावर को अपने अबजॉर्व कर लेना ट्रांसमिशन मोड के, ये वैल्यू कि तकरीबन 800 ओम के लागे जाके प्रैक्टिकल रोम्बिंग एंटीना वास्ते, ठीक है। इसका रेडिएशन पैटर्न कितना का बनता दिखाया कि शोज द रेडिएशन पैटर्न रोम्बिंग एंटीना, इट शोज द रोम्बिंग एंटीना इज हाईली डायरेक्शनल। पहले दिखाना आगे, अरे दिखाया कितने केड़ी फिगर दिखाया 4.14 बी, यस दिस वन, ठीक है ना, यही पता लग गया। डायरेक्टिविटी ऑफ दिस एंटीना इज वेरिंग बिटवीन 20 to 90 डिग्री, 20 डिग्री तो लैके 90 डिग्री के डायरेक्टिविटी वेरी करती है। इट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन दी लेंथ ऑफ द लेग्स। अच्छा जिदा लेंथ ਉਹਦੀ लेंथ लेग्स की लेंथ बढ़ती है उदा डायरेक्टिविटी भी बढ़ती है। एप्लीकेशन की है इज ए नॉन रेजोनेंट एंटीना, सो इट इज ए ब्रॉडबैंड एंटीना। दिस एंटीना इज यूज्ड इन HF ट्रांसमिशन हाई फ्रीक्वेंसी एंड रिसेप्शन, आइडियली सूटेबल फॉर कमर्शियल पॉइंट टू पॉइंट एप्लीकेशन। अगे आ लो जी रिव्यू क्वेश्चन आ गया थोड़े लिए, ठीक है। सिग्नल ऑक्यूपाइंग रेंज बिटवीन 0.1 mm and 700 nanometers are called, और जिथे नैनोमीटर इंफ्रारेड लाइट हैज वेवलेंथ इन द रेंज 0.4 मिलीमीटर तो लगे 0.8 मिलीमीटर। अच्छा एंड डैश आइसोलेट ये तो पॉइंट सोर्स एंटीना विच रेडिएट्स इक्वली इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है। कई बार असी उन्होंने ओमनी डायरेक्शन भी बोलते। रेजोनेंट एंटीना ये सारा दिता, रेजोनेंट एंटीना इज ए ट्रांसमिशन लाइन the length of which is exactly equal to the multiples of half wavelength and it is open at both ends। पता लग गया, ताही वो रेजोनेंट एंटीना दी मतलब ट्रांसमिशन लाइन की जी रेजोनेंट एंटीना असल जो रेजोनेंट एंटीना है कि एक ट्रांसमिशन लाइन है जिसकी लेंथ के बराबर है एक्जैक्टली इक्वल टू द मल्टीपल्स ऑफ हाफ वेवलेंथ और दोनों एंड तो ओपन है। इदा ही आइसोट्रोपिक रेडिएटर की है विच रेडिएट ये तो फिर इक्वली इम्पॉसिबल ऑल डायरेक्शन, वही आ करते रिपीट करता है, ठीक है ना। सो इस तरीके तो सारे क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन दिते नाल उहदे आंसर दिते हैं, ठीक है। आ देखो पता लग गया भाई? यस सर। हाँ यस सर। हाँ यस सर। यस सर। ठीक है, कल ही होना एदा पेपर कदों आ? परसों। हाँ अपनी तैयारी करो, ऑब्जेक्टिव टाइप ही होना बस 20 क्वेश्चन होना। ओके सर। ठीक है। ओके सर। यस ओके सर। सर। यस सर। चलो ठीक है ओके। आई एम गोइंग टू स्टॉप, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? यस सर। हाँ जी सर ले लिया।